अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर के इलाके सब्ज़ाज़ार में एक खातून को ससुराल वाले मुबैना तौर पर किस तरह से कत्ल करते हैं। मकतूला के लवाहकीन की मुद्दत में मुकदमा तो दर्ज कर लिया जाता है और 2 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है, एक उसका शोहर और जेठ। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने आती हैं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन लवाहकीन क्या कहते हैं, किस तरह से उनकी बेटी के ऊपर जुल्म व सितम होता रहा, कौन से ऐसे शवाहिद हैं जिस वीडियो के ज़रिए ये पता चलता है कि वाकई ही मरने वाली के ऊपर इतना जुल्म और इतना सितम किया जाता था। ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। सब्ज़ाज़ार के इलाके में एक हवा की बेटी एक मरतबा फिर ससुरालियों के सितम का जुल्म का शिकार होती है और उसको मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस FIR भी दर्ज कर लेती है और मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार कर लेती है। ये वाक़या है क्या, जो मकतूला थी उसके वालिद जिन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला, भाई की बेटी थी, किस तरह से इन्होंने उसकी परवरिश की और क्या जुल्म और क्या ज़्यादतियाँ उस बच्ची के साथ की जाती थी, ये इनकी ज़ुबानी जानते हैं। की नाम जे तुहाडा? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील साहब, सब तो पहले दसो कि तुसी दस रहे सो कि बेटी जिहड़ी है तुसी अपने भाई दी सी लैके बेटियां दी तरह पाली। जी बिल्कुल, ਉਹਦੀ पैदाइश के दौरान ਉਹਦੀ वालदा कौमे 'ਚ चली गए सन ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੁਦਈ ਬਣਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ, ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। किसी ने रिश्ता कराया। बेटी ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? बेटी की उम्र 23 से 24 साल उम्र थी। ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ? रिमशा। रिमशा पढ़ी सी? बस सपारा वगैरह पढ़ी सी ते 5वीं तक स्कूल पढ़ी हुई थी। ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਇਹ 2020 ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ 4-5 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਝਗੜੇ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਬਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ? ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਸੀ ਜੁਨੇਦ, 2 ਹੀ ਭਾਈ ਸਨ, ਇਮਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਮਦ ਔਰ ਜੁਨੇਦ। ਉਹ ਮਸਲਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਦਕਾਰੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇਠ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਮਦ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸਾਲ ਡੇਢ ਚ। ਖੈਰ ਉਹ ਤੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਵੀ, ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਧੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਨਾਣ ਹੈ ਸਾਇਰਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਾਸਟ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਾਸਟ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਮੈਂ ਡੋਲਫਨ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਕੀਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡੀ ਵਾਹ ਹਯਾਤ ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਬੇਟੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ख़त्म ਕਰਾਂ। ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਕੋਖ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਊਦੀਆ, ਇਮਰਾਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੋਹਰ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ, ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੀਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਾਰਦੀ ਇਹਦੀ ਨਨਾਣ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਤੇ ਬਬਲੀ 2 ਨਨਾਣਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਬੂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ? 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਮਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। 6 ਮਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰ ਮਾਰਦੇ? ਜੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਮਰਤਬਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ। ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਛੀਨ ਲਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਰ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਬਾਹਰ निकली है। एक वीडियो है जो अब तो बच्ची जो है वो मकतूला जान से चली गई, तो उसकी एक वीडियो बनी। ये घर गए हुए थे अपनी बेटी के साथ, इनकी दूसरी बेटी थी, तो उन्होंने एक मोबाइल पे वीडियो बनाई जो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाते हैं। नहीं जाएगा। को नहीं देना, ट्रान पकड़ लो, जा चली जा, तेरा बच्चा नहीं, तो छोड़ो। नहीं, मैं को पकड़ ले। नहीं, मैं इस स्क्रीन में जो वीडियो दिखाई जा रही है उसमें वाज़ह तौर पर ख़वातीन जो है वो तशद्दुद करती दिखाई दे रही है। अच्छा जी, फिर ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਵਾਕਿਆ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਚੰਨ 2024 ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਾਮਦ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ 6-7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 20-22 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੀਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਝੋਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 22 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਲੇ ਅੱਜ 20-22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਸੁਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 6-7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਲੱਗਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਲੱਗਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ PIA 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਬਜ਼ਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ? ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਬੇਟੀ ਕੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸੰਧ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਸਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਐਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀ
ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਖੁਦ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਨਾਣ ਫਿਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਮਸ਼ਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚੁੱਪ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਬੂ ਚੁੱਪ, ਕੁਛ नहीं होता, मैं टाइम गुजारांगी। अच्छा, दूसरे नंबर तो सर जी मेरी बड़ी बेटी ने इमरान नू कॉल करके पूछा कि तो आप कब जा रहे हो बाहर? कहता कौन जा रहा है, रिमशा कब जा रही है बाहर? कहता कौन लेके जा रहा है? मैं कोई वहाँ पे आपको तहरीर लेके दे के आया हूँ कि मैं लेके जाऊँगा? हमारा तो इधर यकीन करे सर जी, हमने तो सर पकड़ लिया कि ये हमारे बार पता नहीं कितनी बार तो मदीने की कसमें खाने वाला हमारे साथ फिर धोखा कर रहा है। हम सर पकड़ के बैठ के फिर हम घर गए, शर्मिंदा होकर दोबारा घर गए। हालांकि हम जाना नहीं चाहते थे, इसकी माँ बाप कहते थे हमारे घर में ये दाखिल ना हो। हम गए हैं, शर्मिंदगी के साथ गए हैं। उधर भी बस वो नहीं अंकल अभी कागज़ नहीं बन रहे बच्ची के, ये नहीं हो रहा वो। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, अगर हमारी बेटी यहाँ पे खुश है तो ठीक है। वो ऐसी थी नहीं, वो बेशर्म से लोग हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि गाल गलोच उनके घर में। अच्छा, वो सारी रात जागने वाले आवारा से लोग हैं, तो दिन को सोते हैं। पान नशा ये चीज़ें हमें तो उधर जाने से पता चला ना कि ये किस कैटेगरी के लोग हैं। पान तो ऐसे खाती थी उनकी औरतें, वो भी जैसे बाजारी औरतें नहीं खाती। नशा या बच्ची हमें बताती थी ये कुछ काली काली सी चीज़ भी खाती हैं, वो ज़ाहिर फ़हीम होगी, नशा करती होंगी, शक्लें इनकी वैसी बनी हुई हैं फ़हीम जैसे नशेई होते हैं। सर हम बुरी तरह फंस चुके थे, पर हमारी बच्ची को सिर्फ बच्चे लेके बैठ गए हैं। आज भी उससे बच्चे छूट गए तो हम कहते थे कि छोड़ो। अब आपके पास है? नहीं सर जी, बच्चे उन्हीं के पास ही हैं। कौन देख रहा है उनको, किसके पास है? कौन, मतलब बाप के पास है? माँ के, ये इकट्ठे ही रहते हैं ना, ज्वाइंट फैमिली है। दादी के पास है? दादी के पास है। दादी के पास है। अच्छा, जब ये होता है, वाकया पेश आता है, आपको इतला मिलती है कि आपकी बेटी को मार दिया है, वो शबरात की रात थी, 9 से 9:30 के दरमियान का टाइम था। मैं काम से वापस आ रहा था, इधर ही मैं अपने मक्का चौक में पहुंचा तो मुझे कॉल आती है जुनेद की। कहता है जमील अंकल, रिमशा रात को ऊपर छत पे कपड़े धो रही थी, उसको चक्कर आए हैं, वो गिरी है और 1122 वाले बुलाए हैं। उन्होंने इनकी इधर ही शुगर चेक की है, ब्लड चेक किया, शुगर तो इनकी 400 आई है और ब्लड लो आया है। तो क्या ऊपर से होके पूछ रहा क्या इनकी शुगर थी? तो मैं आगे से कहता हूँ शुगर तो आपको पता होना चाहिए ना, 5 साल तो आपके पास गुजार रही है, मेरे पास तो वो अभी बच्ची, अभी तो शुगर का नामो निशान, हंसमुख बच्ची थी वो। हाँ, बहरहाल चले हम उसको लेके गए थे, उन्होंने उधर नहीं लिया। फिर हम इसको ना जना हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल है उधर, एमरजेंसी में इसको लेके गया। राजू, इमरान को राजू कहते हैं ये। मैंने कहा आप किधर हो? कहता मैं घर में हूँ। मैंने कहा मैं राजू से, मेरे जहन में ये था कि ये वैसे आम नॉर्मल से होगा मसला कोई, तबीयत खराब हो गई है। ये तो ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि इन्होंने मेरी बच्ची के साथ कुछ किया है। मरने की वजह जो है वो बज़ाहिर तशद्दुद उस पे था जब आपने उसल वगैरह दिया? सर जी मैं बता रहा हूँ आपको, वो ना जब हम उधर हॉस्पिटल जाने के लिए स्टेशन के करीब ही ऊबर वाली गाड़ियाँ हमने करवाई हैं, सब ने करवाई हैं, 4-5 गाड़ियाँ करवाई हैं। जब हम उधर पहुँचे, मैं हास करके पहुँचा हूँ तो मैं राजू को कॉल करता हूँ कि यार इमरान क्या हुआ मेरी बच्ची को? कहता अंकल अभी आप कॉल बंद करें, मैं पर्ची बनवा रहा हूँ। मैंने कहा चले हो सकता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद 10 मिनट के बाद दोबारा कॉल आती है कि रिमशा बहुत सीरियस है, रो रहा था साथ। तो ठीक 5 मिनट के बाद फिर मेरी बड़ी बच्ची ने दोबारा कॉल की है, तो कह रहा था कि रिमशा की डेथ हो गई है। हम जब गए सर जी उधर तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी बच्ची की हॉस्पिटल में। तो उसके ऊपर कोई तशद्दुद, कोई ऐसा तशद्दुद का क्या निशान लगता है किस तरह मारा उन्होंने? अगर ये आपको- सर जी जो हमें नजर आ रहा ना, जो हमने उसको देखा, जो आस पास के वार्ड वाले, बेड वाले हमें जो बता रहे थे, औरतें और मर्द हमें जो बता रहे थे, डेड बॉडी निकालने के बाद हमारी घर वालों को या मुझे खुद जो उन्होंने बताया, वो ये कह रहे थे कि बच्ची जब इधर इन्होंने इंटर हुई अंदर, तो बच्ची ऐसे अपने पेट को पीट रही थी, मेरे पेट में आग लग गई है, मेरे पेट में आग लग गई है, ऊंची ऊंची चिल्ला रही थी। फिर उसने एक जोरदार चीख मारी है, चीख मारने के बाद उसकी आंखें बंद हो गई हैं। आपको लगता है कि कुछ उससे खिलाया गया? कुछ खिलाया गया जी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट? जी वो कल सैंपल जमा हुए जी। अच्छा, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी अभी है? आना बाकी है। पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया? हाँ, वो एसपी साहब इकबाल टाउन वाले जो हैं उन्होंने हमारे साथ काफ़ी तावन किया है। SHO साहब ने भी, सब्जादार वाले ने भी काफ़ी तावन किया है। हमारी रिपोर्ट 302 उन्होंने FIR हो गई, करवा दी और वो मुलजिम पकड़े गए? दोनों पकड़े गए हैं। जो दोनों उनकी भाई, बहन सारा शोहर और जेठ दोनों पकड़े गए? दोनों पकड़े गए हैं, सारा भाग गई है। और सारा के 4 सारा नामजाद कौन है? यही ननांद है उसकी। नंद है उसकी। 4 आदमी नामजाद है, सारा,
उसका बाप राशिद बेग, इमरान और जुनेद। इमरान और जुनेद इस वक्त हवालात में हैं। ये दो पकड़े हुए हैं। हमारी गुजारिश आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप अपने मीडिया के थ्रू इन दोनों को भी गिरफ्तारी में लाया जाए। आज देखें ना 5-6 दिन हो गए अभी तक वो आज़ाद फिर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, हमारी समझ में नहीं आ रही ये बात। बिल्कुल ठीक है, ये माइक इनको दीजिएगा। भाई आप बताएं अपना नाम, माइक करीब कर लें, और रिमशा से आपका क्या ताल्लुक है, रिश्ता वो है? मेरी सिस्टर है, चाचा सिस्टर है मेरी। चचाजाद बहन है। अच्छा, क्या हुआ, आप भी इस मामले में आपको भी पता था कि ये सारा कुछ हो रहा है? जी, सर, तशद्दुद जी हमें ज़्यादा पहले से नहीं पता था। आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले जब वो नाराज़ होकर आई यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोगों ने, पूरे ख़ानदान ने ये सोच लिया था कि अब इनको वापस नहीं भेजना। जब हमें उनके घर के हालात का पता चला तो हमने सोच लिया इनको वापस नहीं भेजना, ठीक है। उस टाइम ये जो इनका शोहर है ना, वो सऊदीया में था। ये सऊदीया से आया है, इन्होंने आके कस्में उठाई हैं यहाँ पे कि मैं इसको अलग मकान में रखूँगा, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है, आप इसको अलग मकान में ले जाओ, उसके बाद आप इसको सऊदीया ले जाना। हमें ज़्यादा इशू था जुनेद से, क्योंकि जुनेद जो है वो बहुत ज़्यादा करैक्टरलेस है, ठीक है। मोहल्ले में भी इसकी बहुत सारी कंप्लेन है, ये कभी किसी के घर के साथ खड़ा हो जाता है, कभी किसी के घर के साथ, और नशा करता है वो, ठीक है। उसकी जो सिस्टर हैं वो भी नशा करती हैं, पार्टियों में जाती हैं, डांस पार्टियों में। तो ये आज़ाद ख्यालात लोग थे, ठीक है। हमें इस चीज़ का पहले नहीं पता था, हमने तो अरेंज मैरिज की है और किसी के ज़रिए की है। बाद में जब हमें पता चला तो हम तो बहुत पछता रहे थे, लेकिन जो हमारी सिस्टर थी वो मान नहीं रही थी इस चीज़ को कि मेरे 2 बच्चे, मैं खुला नहीं लेना चाह रही हूँ उनसे, ठीक है। उस वजह से अभी जब ये लेके गए हमारे पास से मिन्नतें तल्ले करके कि आप मुझे एक मौका और दें, नेक्स्ट जो है ना आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी। 2 दिन सिर्फ रखा है उसको नए मकान में। 2 दिन के बाद ये अपनी माँ के पास। अब आप ये बताएं कि पुलिस ने मुलजिम जो है वो 2 पकड़ लिए हैं, 2 रहती हैं ख़वातीन जो हैं नामजद। जी। तो गए हम थाने में, इन्वेस्टिगेशन हुई है, आमना सामना हुआ है, क्या कहते हैं मुलजिमान? सर, जो मुलजिम है, मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं और पिक्चर भी है। वो थाने में हवालात के अंदर खड़े होकर हमें धमकियां दे रहे हैं, ठीक है। उनका जो स्टाइल है, ऐसे बाजू ऐसे कर रहा है, वीडियो में नज़र आ रहा है बाकायदा, अच्छा। ठीक है। और हमें कह रहा है कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। उसका जो बाप है वो साबिक सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड है पुलिस में। क्या नाम है उसका? राशिद बेग। अच्छा, तो पुलिस इंस्पेक्टर है, सब जी अभी रिटायर हो गए। जी। अच्छा। तो उनको ये है कि मेरा बाप को तो पूरे कानून का पता है, हम लोग बच जाएंगे। हवालात में खड़े होके वो मुझे वीडियो में बोल रहा है, तुम कौन होते मेरी वीडियो बनाने वाले, तुम क्या कर सकते हो मेरा, ठीक है। अच्छा। एकदम हमारे साथ तो वो वीडियो में ये धमकियां भी लगा रहे हैं? नहीं, वो असल में पुलिस वालों ने हमें मना कर दिया था। सिर्फ 9 सेकंड की वीडियो बनी है, ज़्यादा हम बना नहीं पाए हवालात में। अच्छा। तो वैसे वीडियो जब बंद हो गई थी, ऑफ दी वीडियो, वो हमें धमकियां लगा रहा था कि आप लोगों से जो होता आप कर लो, आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। और उनको किसी चीज़ का भी कोई डर नहीं है, वो अभी भी अपने घर पे रह रहे हैं। एक तो ना कि बंदे फरार होते हैं। 2 हमारे मुलजिम हैं, एक सारा बीबी और एक उसका जो बाप है राशिद बेग, वो दोनों अभी अपने घर पे रह रहे हैं। लेकिन अभी IG पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, दोनों को। बिल्कुल जी। हवा की बेटी को जिस तरह से इस मकतूला का जो वालिद है वो बताता है, और चचाजात भाई जो है उसने भी बताया कि कई मरतबा लड़ाई झगड़े हुए, कई मरतबा नाराज़ होकर वो अपने बाप के घर आती रही, लेकिन फिर भी यकीनन जो बेटियों वाले होते हैं वो किसी ना किसी तरह से अपनी बच्चियों के घर बसाना चाहते हैं। और यहाँ पे वो बच्ची जो थी वो भी अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती थी। जेठ के ऊपर इल्ज़ामात जो हैं वो भी आपने सुने वालिद की ज़ुबानी, और पुलिस से इंसाफ की तवक्को करते हैं। 2 मुलज़मान पुलिस ने जो नामज़द FIR में हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया है, और 2 ख़वातीन हैं जिनको अभी गिरफ़्तार करना बाकी है। पुलिस के रवैये से, पुलिस की रिपोर्ट से, पुलिस की FIR से लवाहिकीन मुतमिन है। इस ख़ानदान से जुड़े दूसरे लोग क्या कहते हैं ये भी आपको सुनवाएंगे। मकतूला की माँ और बहनें, जिसमें एक चचाजाद बहन भी है, क्या कहती हैं इसमें? वो भी हमारे पास खातून मौजूद हैं जो बताती थी कि जब ये जुल्म सितम होता था तो वीडियो कैसे बनाई गई। ये भी तमाम हालात हम इनकी ज़ुबानी जानेंगे। माँ को क्या दुख है, माँ से बेटियाँ क्या कुछ शेयर करती हैं जो उनके साथ ससुराल में होता है। यकीनन माँ को ज़रूर पता होता है क्या बताती थी मरने वाली, क्या उसको दुख था, कौन जुल्म करता था, कौन उसको वहाँ पे रखना नहीं चाहता था, मारना चाहता था। ये उस माँ से पूछते हैं। की होया सी, की कहती सी रिमशा, कुछ दसोगे? पिछले पीर दिन मेरी बेटी आई है, कहती है मामा मैं त्योहार दिन आवांगी तेने मिलने वास्ते। त्योहार दिन में इंतजार किया, मेरी बच्ची नहीं आई। फोन किया? नहीं,
नहीं आई मेरी बच्ची मिलने वास्ते, मैंने सारा दिन इंतजार करते रहने। मेरी बच्ची ने सालमान मां छुट्टी गई, मैंने इंसाफ चाहिए। ਤਨ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ और कुछ तशद्दुद दे निशानात जिस्म ते कुछ है सी तशद्दुद? अच्छा चले आप दें ज़रा माइक इनको, बहन को। आप अपना बताइएगा नाम और क्या आपकी चचाजाद बहन थी? जी। अच्छा, क्या कहती थी आपको, क्या बताती थी? बस हर वक्त उनके बारे में ही बात करती रहती थी कि मेरे जो मतलब सास है वो मुझे मारती हैं। सास भी मारती हाँ थी? जी। और जो नंद है वो हर वक्त तो मतलब सहरा का कहती थी कि वो मुझे मतलब काफ़ी। वो भी नंद है? हाँ जी, दो नंद है। नंदें थी? हाँ जी, बबली और सहरा। अच्छा। तो काफ़ी वो मुझे मतलब तंग करती हैं। इमरान तो खुद बाहर चला गया है कि वो मुझे मतलब मैं क्या करूँ, मुझे तुम बताओ। मैंने कहा तुम अब्बू को भी नहीं कहने देती, बच्चों को भी नहीं छोड़ती, फिर क्या हाल है इस चीज़ का। काफ़ी दफ़ा हमारे घर नाराज़ हो के आई है, काफ़ी दफ़ा। तो बच्चों की वजह से करके फिर चली जाती थी। साथ इमरान आता, फिर वो उसको अपनी बातों में ले आना, मतलब उसको कहना मैंने अलहदा रखना है। ये लास्ट बार भी ऐसे ही हुआ। आया है तो फ़ोन पे ही पहले 15-20 दिन तो फ़ोन किया ही नहीं इसने। 20 दिन के बाद फ़ोन आया तो जब हमने वो भी इनको पता चला कि ये अब खुला मतलब लेना अच्छा, चाह रहे हैं। पहले जब नाराज़गी होती थी शोहर तो उसका बाहर होता था। हाँ जी। तो शोहर तो ज़ाहिर नहीं मारता होगा, वो तशद्दुद नहीं करता होगा, इधर था ही नहीं पाकिस्तान में। जी। तो कौन लोग थे जो मारते थे, किनका बताती थी? सास और सहरा और वो जिसका जेठ है वो। जेठ खुद भी मारता हाँ था? जी, हाँ जी। मतलब अपनी भाभी को मारता हाँ था? जी, क्योंकि वो उसको ना कहता था, ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा करता था कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं अपने भाई से तुम्हें डिवोर्स ले दूंगा। क्या ब्लैकमेलिंग करता था? क्यों मतलब करता? यही कि तुम मतलब मेरा भाई बाहर होता है, बाहर मुल्क होता है, तुम मेरे साथ मतलब नाजायज़ ताल्लुकात बनाओ। पर वो इस किस्म का काम नहीं करना चाहती थी, अच्छा। क्योंकि हमारे में ऐसे मतलब ये चीज़ नहीं है। वो कहती थी नहीं, क्योंकि मेरे अब्बू ने जो मेरा निकाह किया वो हाल इमरान के साथ ही किया है। वो अपने शोहर को बड़ी दफ़ा कहती थी कि मुझे यहाँ से लेके तुम अलग। ये बात भी अपने शोहर को उसने बताई? पता कभी था, आपको हाँ जी, बताती पता थी? था, पर तो वो ना शोहर नहीं, वो कोई एक्शन नहीं लेता था। वो यही कहता था कि मैं आऊँगा तो मैं तुम्हें अलहदा रखूँगा। मैं ये जब उसने यहाँ पे आना फिर उसने ना मतलब वो उल्टा उस पर ही मतलब गालियाँ निकालनी कि तुम वैसे मेरे भाई पे इल्ज़ाम लगाती हो, वो तो कुछ भी नहीं है, मेरे सामने तो सही है। क्योंकि उसके सामने तो उसका भाई सही होता था, मेरे सामने तो वो बिल्कुल सही है, तुम मतलब इल्ज़ाम लगा रही हो उस पर। तो इसने कहना कि नहीं तुम मेरी बात को मानो, नहीं तो हमारा घर ख़राब हो जाएगा। पर इमरान ने बस नहीं, वो हर बात को मजाक में ले जाना उसने कि नहीं तुम ऐसी इस बात को एवं इशू बना रही हो, कुछ भी नहीं है, वो मेरा भाई है, ये है वो है। मतलब ज़्यादा अहमियत इन्होंने अपने घर को दी है, बीवी बच्चों की तरफ बहुत कम इसका ध्यान था। मेरे साथ भी इमरान भाई की काफ़ी बातें होती थी, मैं भी इसको समझाती थी कि भाई अपना घर संभालो, आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, अपना घर संभालो। पर इसने ना बात को इग्नोर कर देना, कहना कि मैं इसको खाने को देता हूँ, पहनने को देता हूँ, इसको और क्या टेंशन है। मैंने कहा खाने पीने की टेंशन नहीं है, बात ये है कि इसको घर में सुकून नहीं है। तुम्हारा भाई इसको तंग करता है। जब ये आखिरी दफ़ा भी आई है मंडे वाले दिन, जो पिछला ये जो मंडे है, तब भी मेरे साथ उसकी यही बात हुई। पहले तो बात करने का मौका ही नहीं देते थे बिल्कुल, मतलब उसके पीछे पीछे आप रहना। जाते थे मिलने उसको घर? बहुत कम। अच्छा। बहुत कम। हम क्योंकि वहाँ पे जाते थे ना, तो इनकी जो मतलब घर वाले थे वो हमें अच्छा नहीं समझते थे, इसी वजह से हम बहुत कम उनके घर हमारा आना जाना था। अच्छा। ज़्यादा अबू को हमने भेज देना, वो भी अकेले कि चलें आप जाएं होके आ जाएं। पर उन्होंने फिर भी बातें करनी कि तुम्हारे माँ बाप इधर क्यों आते हैं, इनके साथ हमारा कोई तल्लक नहीं है, तुम्हारा भी इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, ऐसी बातें करते थे वो। फिर हमें फ़ोन करके कहती थी कि अबू यहाँ पे आप ना आया करें, मैं आपसे खुद मिलने आया करूँगी। तो साल में इमरान को साल बाद छुट्टी होती थी, तब वो इसको यहाँ पे लेके आता था हमारे घर साल बाद। जब वो पाकिस्तान आता था तब वो अपने शोहर के साथ आता? हाँ जी, अपने शोहर के साथ, क्योंकि वैसे उसको नहीं लाने वाला ही कोई नहीं होता था उसको। जेठ के साथ तो वैसे नहीं आती थी वो। ससुर जो था वैसे वो कहता था नहीं मैं चक्करों में नहीं पड़ता जी, तुम्हारे माँ बाप है, तुम जो मर्जी करो। ऐसे की बस बातें करती रहती थी। और आखिरी दफ़ा भी इसकी मेरे साथ यही बात हुई है कि इमरान के ये अब जो पीर गुजर गया, इसकी इमरान की फ़्लैट है, इमरान चला जाएगा, लिहाजा अबू से बात करो तुम कि मेरे मसले का हल करे। इमरान चला जाएगा, मेरा जेठ फिर मुझे तंग करेगा। इमरान मेरी बात के इतना एक्शन नहीं ले रहा। मैंने कहा चलो तुम जाओ, ये जो संडे आप गुजरा है, मैंने कहा संडे वाले दिन हम आएंगे, मैं अबू को कहूँगी किसी 2-4 आदमियों को लेके आएंगे, हम बात करेंगे। पर उन्होंने हमें इतना मौका ही नहीं दिया। जुमेरात वाले दिन उसकी डेथ हमें मिल गई आगे।
बस ये बात हुई है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि एक वीडियो आपने बनाई है, हाँ जी, वो कैसे बन सकी वीडियो और क्या हुआ था वहाँ पे? हम लोग ऐसे ही, हमें फ़ोन आया ना उसके ससुर का ही कि आगे अपनी ना बेटी को ले जाओ आप। अबू ने मुझे कहा कि आओ हम दोनों ही चलते हैं, समझो अबू जाके इसको वहाँ पे ही आ जाएंगे जी, क्या मसला है। खैर जब हम लोग वहाँ पे गए तो उनकी ना काफ़ी वहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कमरे में वो बंद हुई है। और हम जब गए तो बल्कि वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि वो जो जुनैद है वो दरवाज़ा लॉक करके खड़ा है, हमें भी अंदर बंद किया हुआ है, हमें भी बाहर नहीं निकलने दे रहा ठीक कि है। ये कहीं इसको लेके जाए। जुनैद कौन है? शोहर? जेठ जेठ। शोहर तो तब यहाँ पे था ही था नहीं ना। नहीं, अच्छा। तो हम लोग जब गए हैं तो वो मोबाइल, उनको नहीं पता मोबाइल मैंने अपने हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ है, वो वीडियो हिल भी रही होगी क्योंकि मोबाइल जो मतलब पकड़ा हुआ है। खैर बेटी को उसने मुझे पकड़ा दिया, मेरी बहन ने, और बेटा इसने उठाया हुआ अपना, तो वो ना बच्चे नहीं दे रही, साथ इसके बाल खींचने, साथ मतलब उसकी सास, सारा बीच में वो वीडियो में आपको ना नज़र आएगा जो जो हो रहा है वहाँ पे। तो जो जेठ था उसका, तो वो और उसका ससुर वो भी वीडियो में मौजूद है, नज़र आएंगे आपको। खैर मौके पे हमने इमरान को फ़ोन किया, उनके घर वालों ने, कि आप ना वो बच्चे लेके जा रही हैं वहाँ से, बाहर के मुल्क से। इमरान ने कहा कि नहीं बच्चे नहीं देने इसको। बस इमरान का कसूर ये है कि वो अपने घर वालों का साथ देता था, बस इमरान का लेकिन कसूर। जब उसकी डेथ हुई है तब तो इमरान पाकिस्तान में था। हाँ अब आया हुआ है पाकिस्तान। तो खुद भी मारता था उसको? जाहिर सी बात है, क्योंकि अबू उन्होंने गया तो अबू उन्होंने के साथ ही लगी हुई थी। इमरान भी पास बैठा हुआ था, मेरी बहन, जब अबू अकेला गया। क्या लगता है उसको मारा कैसे है, किस तरह से उसकी डेथ हुई, क्या वजह हो सकती है? मतलब देखने में तो ऐसा ही लगता है कि कोई चीज़ दी गई है, जहर की दिया गया, कोई जैसे जहरीली उसकी चीज मतलब, हाँ खाई जी, उसने? जैसे हमने खुद तो नहीं उसने कुछ ऐसा खाया होगा? ये तो अब मतलब हमें इस चीज़ का तो नहीं है पता, पर खुद भी खाई है, क्यों खाई है, कोई वजह होगी नहीं, ना। जब उसको वो पहले नहीं उसने किया है साहब, 5 जी, साल गुजर 5 गए साल और में नहीं बच्चों किया, के हाँ लिए जी। वो घर बसाना चाह रही थी, तो फिर जबरदस्ती कुछ ना कुछ उसको जाहिर सी बात दिया है, गया होगा। बच्चों के बारे में अपना बहुत सोचती थी वो, अगर वो मरने वाली नहीं थी वो, क्योंकि उसको ये भी पता था कि मेरे बच्चों को इन्होंने नहीं संभालना, क्योंकि वो उसके सामने बच्चों को डांटना मारना वो करती थी। बात करते करते जो रिमशा की, मकतूला की वालदा थी, उनकी तबीयत आपने देखी कि किस तरह से ख़राब हो गई। एक माँ को यकीनन इंतहाई दुख और बहुत दुख होता है। मकतूला की जो है बहन, उससे हमारी बात हो रही थी, मज़ीद वो क्या कहना चाहती है, यहाँ से बात का दोबारा से आगाज़ करते हैं। अच्छा, आपने बताया कि वीडियो आप बना रही थी और उस वक्त तो वाकई उस वीडियो में नज़र आ रहा है कि तशद्दुद जो है वो किया जा रहा है, तो उसके बाद फिर आपने क्यों कोई रिपोर्ट नहीं करवाई पुलिस को, कि आपने अपनी आंखों से देखा कि आपकी बहन को मारा जाता है, तशद्दुद किया जाता है? चले पहले तो किसी हद तक सुनी सुनाई बात हो सकती है या बहन बताती थी, अब तो आपने अपनी आंखों से देखा उस वीडियो, उसकी वीडियो भी बनाई आपने। बस वो यही कहती थी कि मेरे बच्चे बस मुझे दिला दो, और फिर मैंने ना इसे खुला लेनी है। खैर हम लोग खुला के चक्करों में पड़े भी हुए थे। मेरे अबू ने कहा जी अब नहीं भेजना इसको वहाँ पे। हमारी पंचायत बैठी, उन्होंने भी यही फैसला किया कि अब नहीं भेजना। ठीक है। जब वो इमरान तक ये बात गई खुला की कि अब ये खुला लेना चाहते हैं, तो उसका 20 दिन बाद फ़ोन आ जाता है अचानक से अबू के नंबर पर, कैसे अंकल मुझे पता चला है आप ले रहे हैं कि वो रिमशा डिवोर्स ले रही है। आगे से अबू ने कहा जाहिर सी बात है वही लेगी, तो कहता जी नहीं आप मेरी रिमशा से बात करवाएं। रिमशा से ऐसे यही टाइम था शाम का, फ़ोन पे बात हुई उसकी, तो इमरान ने पहले उसको काफ़ी मतलब कहा कि तुम अपने दिल से खुला लेना चाहती हो। रिमशा ने आगे से ये ऐसे गिले शिकवे किए कि मैंने पूरी कोशिश की अपना घर बचाने की, पर ना तुम नहीं सुनते थे मेरी, लिहाजा अब यही है कि एक बच्चा एक माँ से छीना जाए तो बकाया पीछे क्या रह गया। कहता नहीं तुम ना थोड़ा सा सब्र करो 10 दिन, तो मैं ना आ जाऊँगा जनवरी में, मतलब शुरू में मैं आ जाऊँगा, तो मैं आके खुद आमने सामने बैठ के बात करूँगा, तब तक आप लोग कोई काम या कोई बात ना करना किसी से भी। तो खैर जी अबू भी पहले काफ़ी गुस्से में थे, फिर अबू को हम नहीं समझाए कि अबू चले, जब वो आ रहा है फिर आमने सामने बैठ के बात होगी, जो भी हमारे गिले शिकवे हैं। तो कहने लगा चले जी मैं आऊँगा तो इसको मैं वहाँ पे नहीं लेके जाऊँगा, मैं अलहदा रखूँगा। हम लोग मुतमईन हो गए कि चलो। खैर जब ये आया जनवरी में, 7 जनवरी को ये इधर पहुंचा, 8 को हमारे घर आया। आके इसने जब मतलब हमारे साथ ऐसी रात रुका यहाँ पे, काफ़ी मतलब हम लोगों ने भी गिले शिकवे किए कि ऐसे ऐसे ऐसे। उसने कहा कि जब मैं कह रहा हूँ मैं इसको वहाँ सब्ज़ाजार का मतलब शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा, तो आप आगे क्या कहती हैं आप? ठीक है। मैंने भी कहा है, मैंने भी बातें की हैं उसके साथ। कहता है बस आपके साथ मेरा ये वादा है कि मैं इसको वहाँ पे नहीं लेके जाऊँगा। 1 माह की छुट्टी पे मैं आया हूँ, 1 माह तक ये मेरे साथ अलहदा रहे, तो उसके बाद मैं ना बच्ची के मतलब कागज़ तैयार करके इसको मैं अपने साथ ही ले जाऊँगा। ठीक है।
तो उसी दौरान ये सारा हाँ कुछ जी, हो जाता हाँ है। जी, कितने दिन आए हुए हो हाँ गए जी। थे उसको? बच्ची को नहीं, इमरान को इमरान को। हाँ जी, उसके मतलब ये छुट्टी पूरी होने वाली थी। छुट्टी पूरी होने हाँ वाली जी, थी, ये कागज बने? नहीं नहीं, ये जब हमसे लेके चला गया रिमशा कोई को, पासपोर्ट नहीं बना, कोई कुछ भी नहीं, नीयत ही नहीं थी उनकी, सिर्फ उसने यहाँ से इसको लेके जाना था हमारे से। खैर जी, उसके बाद ये यहाँ से ले गया, अबू को साथ लेके गया इधर ये बत्ती चौक वाली साइड पे, कहता है मैंने घर ली है, वहाँ पे मैं इसको रखूँगा। अबू बाकायदा साथ गए, जाके घर देखा तो खैर हम मुतमईन हो गए जी ये अलहदा रह रही है। 3 के 4 दिन बाद हमें रिमशा का फ़ोन दोबारा आ जाता है। बहाने से उसने फ़ोन किया कि अबू ऐसे ना, क्या हाल है, ठीक है ठीक है। अबू ऐसे ना इमरान मुझे फिर वहाँ अपनी माँ के पास ले गए, मेरी सास आई थी मेरे से माफ़ियाँ शाफियाँ मांग के, तो मुझे वो दोबारा वहाँ पे ले गई हैं। अबू ने कहा ऐसे क्या है, अबू फ़ोन पे ही बोलने लग गए कि तुम क्यों गई हो, इतना कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, तुम क्यों गई हो। पर वो ना जब फ़ोन पे बात भी करवाते थे ना, तो वो उसने सर के ऊपर खड़े होकर आवाज़ ओपन करके बात करवानी होती थी। अब पता नहीं वो उसको कैसे डराया होगा कि वो हमारे साथ जब बात कर रही है। खैर इसने अबू को कहा अबू कोई मसला नहीं है, तो आप परेशान हो, मैं सही हूँ। खैर हम लोग मुतमईन हो गए। थोड़े से दिन गुजरते हैं, ये पीर वाले दिन, ये जो पिछला पीर है ये आ जाती है। आती है तो ना इसने ऐसी मतलब आई है, इसका चेहरा काफ़ी मतलब उतरा हुआ भी लग रहा था और अपने शोहर के सामने खुश भी लग रही थी। उसको महसूस नहीं करवा रही थी कि इनसे मैं कोई बात करने आई हूँ। बहाने से यहाँ पे आई है, कहती अबू मैंने कहा मैं आके मिल जाऊँ, तो इमरान ने अगले पीर को चले जाना। मैंने इसको कहा तुम गाड़ी वापस दे दोगे, रेंट पे गाड़ी लेता था ये 1 माह के लिए, तो मैंने इसको कहा मुझे अम्मी के घर से वापस मतलब ले जाओ। खैर जी ये आए हैं, बैठे हैं, रात का टाइम था, खाना वगैरह खाया है। उसके बाद ना अब इससे बात करने का, आंखों से मुझे इशारे करे कि मैंने तुम्हारे साथ बात करनी है, पर बात ना कर सके क्योंकि शोहर के साथ था। खैर जी इसने बहाने से वॉशरूम तक गई है, इसने मुझे बुलाया कि बच्ची का पैम्पर दो, मैं चली गई साथ। तो इसने तब मुझे कहा है कि ना मैं तुम्हारे साथ बात ज़्यादा नहीं कर सकती, सिर्फ मैंने तुम्हें यही कहना है कि तुम ना कुछ भी करके तो इस मसले का हल करवाओ, मैंने उधर नहीं रहना। इमरान वहाँ पे मुझे ज़बरदस्ती लेके गया, लिहाजा मैंने उधर नहीं रहना। तुम अबू से, चाचू से, ताए से बात करो कि ये ना इस मसले का हल करें, क्योंकि इमरान तो चला जाएगा, जुनैद ने फिर मेरे साथ वैसा ही करना है। लिहाजा मैंने कहा चलो तुम जाओ, इस टाइम तुमने कोई बात नहीं करनी, मैं अबू से बात करूंगी, हम लोग संडे वाले दिन आएंगे तुम्हारे घर, बैठ के वहाँ पे बात करेंगे। पर उन्होंने इस चीज़ का मौका ही नहीं दिया हमें। जुमेरात वाले दिन अचानक हमें फ़ोन आ जाता है कि ऐसे उसकी तबीयत ख़राब है। वो कैसे ख़राब है कि ऐसे छत पे कपड़े धो रही थी तो उसको चक्कर आए हैं, तो उसकी शुगर लो हो गई है। अबू ने जब आके हमें कहा, तो हम लोग जब रास्ते में ही थे तो हमें पता चला उसकी डेथ हो गई है। बस उसके बाद जो है वो आप वहाँ पे गए, हाँ, तो वो डेड हालत हाँ में थी। जी। इंसाफ मिल रहा है? पुलिस तो पूरा हमारे साथ लगी हुई है, तावन कर रही है, पर ना वो रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का रिपोर्ट आएगी तो फिर ही उसमें पता चलेगा। ठीक है, मुलजिम भी पकड़े गए हाँ हैं, जी, क्या 2 चाहती हैं, है, क्या पर होना चाहिए? 2 जो है ना, जो मुलजिम थी वो सायरा थी मेन मुलजिम, क्योंकि उनके घर में फसाद उसी ने डाला हुआ था। अपने भाई को छोटी से छोटी बात बताना, उसको ब्लैकमेल करना, मैं अपनी भाभी को कि तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं अपने भाई को कह दूंगी, वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा, तुम्हें तलाक दे देगा, तुम्हारे से बच्चे छीन तलाक से लीजिएंगे। ब्लैकमेल करते हाँ जी, वो भाई जो था इमरान, उसने अपनी बहन की बात ऐसे माननी कि जैसे वो कहता बस और कोई है नहीं, मेरी बहन है। ज़्यादा टॉर्चर तो वही करती थी ना। वो आज आज़ाद घूम रहे हैं, हमारी सिर्फ यही अपील है कि उन दोनों मुजरिमों को पकड़ा जाए जो इस टाइम आज़ाद घूम रहे हैं, उसका ससुर और उसकी जो नंद है सैरा। ठीक है, वो बाहर हैं, वो बाहर हैं और जी, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। जाए। माइक इनको दीजिएगा। आप यकीनन आपसे बड़ी होगी रिमशा, क्या आप? मैं उनसे बड़ी हूँ जी, रिमशा से। अच्छा, आप रिमशा से बड़ी हैं, जी। तो क्या बताती थी आपको रिमशा, जिस तरह से हमारी बहन ने बताया रिमशा की तो जब से शादी हुई है 4 साल हो गए हैं, वो अक्सर यही बताती थी कि मेरे ससुराल वाले मुझे मारपीट करते हैं, तंग रहती थी वो। अगर हम रिमशा को कहते थे या ना जाओ वापिस, छोड़ दो, वहाँ से डिवोर्स ले लो, उसकी एक ही कहना था कि मेरे पास बच्चे हैं। क्योंकि जब हमें पता लगा था शादी के 6 माह गुजर गए थे, तब वो उम्मीद से थी। जब रिश्ता हुआ था तब आप लोग जाते रहे घर में? नहीं, तब हमारे वो हमारे घर आते थे, लेकिन वो हमारे सामने एक नेक शरीफ बन के आते थे। जाहिर है माँ बाप यही चाहता है कि मेरी बच्ची एक अच्छे घर में जाए, शरीफ लोग हो, वो उसी तरीके से हमारे घर में आना जाना वो करते थे। और हमारे सामने ऐसी कोई बात भी उनकी पहले नहीं आई कि ताकि हम इस रिश्ते को यहाँ पे ही रोक लें। उनकी यही बात थी कि आप जल्दी से भाई ये शादी कर लो कि हमारा जो लड़का इमरान है उसने बाहर जाना है, उसको इतनी छुट्टियाँ नहीं मिली, इस वजह से करके बस रिश्ता हमने दे दिया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो आप उसको यहाँ पे ले आते तो शायद बच जाती? शायद नहीं, उसने बचना ही था। जाहिर है वो जैसे लास्ट टाइम इधर आ गई, कभी तबीयत ऐसे पहले खराब हो, कोई बीमारी हो, कभी उसको कोई ब्लड बीमारी नहीं प्रेशर का लगी, कभी शुगर नहीं हुई, कभी उसको बुखार तक नहीं चढ़ा। रिमशा को हंसते दिल वाली थी वो। यहाँ पे वो जब लास्ट टाइम भी आई थी
तो यानी कि खुशी से वो गई है, बस इतना, बस उसने कहा था कि भाई मैं वहाँ पे तंग हूँ, अब इमरान की फ़्लाइट है, उसने मंडे वाले दिन चले जाना है, तो उससे पहले आप ना इमरान से बैठ के बात कर लो, मेरे पास मोबाइल नहीं है कि मैं आपसे रब्ता करूँ, कि मुझे इतवार वाले दिन भी यहाँ लेके आए और 27वें रोज़े लाए, मैं ईद गुजार के यहाँ पे जाऊँ। आगे से वालिदैन ने उनके कहा कि ठीक है भाई मैं कह दूँगा। पहले तो तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बस इमरान वहाँ से आया, धोखे से यहाँ उसको ले गया। जब वो समझ गया कि आप भाई रिमशा मुझसे डिवोर्स ले रही है, पहले तो रिमशा 4 साल गुजारा करती रही है। जब जुनैद ने ऐसी कोई डिमांड रखी उसकी जिस्म की, नजायज़ तलाक़ात की रखी, तो रिमशा खुद अक गई थी, कहती थी भाई अब मैंने नहीं जाना, मुझे ले जाओ। जब वालिदैन यहाँ से लेने गए, माँ बाप के सामने उसको मारा जा रहा है, बच्चे को उसके बाल के सीटे जा रहे हैं, उसको बच्चे लिए जा रहे हैं, और वालिदैन के सामने उनको धमकी लगाई जा रही है कि जिसकी वीडियो के अंदर उसका ससुर खुद कह रहा है, रिमशा के बाप को कह रहा है कि भाई आप मेरा क्या कर लोगे, अगर गलती हमने कर दी, आपको फ़ोन करके बुला लिया, नहीं तो हमने बच्ची को मारना था, फिर आपको तलाक देनी थी। ये उस वीडियो में भी कह रहे हैं वो। लेकिन हम ये बेबस माँ बाप थे जो अपनी बच्ची को खामोशी से जाते थे, ले आते थे, कहते कुछ भी नहीं थे, क्योंकि उनकी पावर बहुत ऊँची थी। उनका जो ससुर राशिद है हर बात पे बड़ी धमकी लगाता था, मैं सब इंस्पेक्टर आऊँ, ये है वो है, पर रिमशा हमारे कहने पे नहीं मानती थी। जब जुनैद ने ऐसी डिमांड गंदी रखी, वो खुद उसने कहा कि मुझे ले जाओ यहाँ से, ये गए ले आए उसको। जब उसकी पूरी फैमिली में पता लगा रिमशा तलाक मांगने पे आ गई है, वो उन्होंने बाहर से पता नहीं मीटिंग की, क्या किया, इमरान को मंगवाया, यहाँ पे इमरान ने कॉल किया, आया एक आध रात रुका रिमशा को मना के, तो रिमशा ने कहा मैंने नहीं जाना भाई, अब हद हो गई, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिमशा यहाँ तक तंग आ गई थी, उसने कहा कि मैंने बच्चे भी नहीं रखने, ले जाओ अब। लेकिन इमरान ने कहा कि भाई ना मेरा, अब मैं तुम्हें अलहदा मकान लेके रख रहा हूँ, ना ही मेरे पास मेरी माँ होगी, ना भाई ना बहन, हम दोनों अकेले रहेंगे। सुबह हुई तो रिमशा ने अपने अब्बू को कहा भाई मुझे जाने दो। इन्होंने मना भी किया था कि उस वीडियो में देखो क्या हो रहा है, लेकिन उसने कहा नहीं मैं अलहदा रहूँगी, आप मुझे मेरा घर क्यों नहीं आबाद होने देते। अब माँ बाप तो यही चाहते मेरी बेटी खुश रहो, वो खुश थी तो वो चले गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि रिमशा 5-6 महीने के बाद ही जुल्म व सितम का शिकार होना शुरू हो गई, तशद्दुद होता रहा, या जो भी पाबंदियाँ थी, किसकी गलती लगती है, उस मासूम की जान चली गई? गलती तो ये है ना कि अगर जो इमरान भाई खुद ठीक होता तो वो फिर अपनी बीवी को साइड पे भी रख सकता था। मकान जैसे वो लेके गया था ना, वो खुद अपनी रिमशा को अलहदा रख लेता, उसको ज़रूरत ही नहीं थी कि वो अपनी सास अपनी माँ के पास लेके जाता दोबारा। पहले तो उसने ये धोखा किया कि लेके जाने के बाद फौरी खबर आ जाती है उसके बाप को कि भाई मेरी बेटी की डेथ हो गई है। ये तो शक नहीं है, ये यकीन है कि बच्ची खुद नहीं मरी। और जब बच्ची को वहाँ पे हमने देखा उस कंडीशन में कि ये 2 बंदे थे और एक उसकी नन थी सायरा जो भाग चुकी थी, दोनों वहाँ पे मौजूद थे, हमने 15 पे कॉल चलाई और उसको पुलिस की रियासत में ले लिया। ठीक है। और अगर अभी वो सच्चे होते कि उनका ये हम गलत कर रहे हैं कि हमें शक है, तो उनकी पूरी फैमिली में अभी तक रिमशा का ये 7वां दिन हो रहा है, वो क्यों नहीं आई? उनकी कोई फैमिली में एक बच्चा भी नहीं आया, किसी की कॉल भी नहीं आई। अपना इंसाफ देने के लिए वो आते, सफाई देने के लिए वो आते, लेकिन नहीं, उन्होंने वो उनका कोई बंदा भी नहीं आया, क्योंकि उनमें गलती थी। वो रिमशा को लेके जाके उन्होंने वहाँ पे खबर दी है कि आपकी बच्ची की डेथ हो गई है, क्यों? और वालिदैन को क्या करना चाहिए था, यानी कि रिमशा के पेरेंट्स को, जो माँ बाप हैं, आप बहन भाई हैं, क्या करना चाहिए था कि क्या होना चाहिए? अगर जो मेरे से पूछते हैं, मैं अगर मैं वहाँ पे होती, मैं हॉस्पिटल में जैसे अगर पहुँचती ना उस टाइम पे, तो उन दोनों को पुलिस के तो हवाले करती, लेकिन पहले ना अपना दिल इंसान अच्छी तरह ना ठंडा करके ना तो ऐसे बंदे को अंदर करवाते हैं। अगर जो मेरी दिल की बात सुनते हैं, क्योंकि हमारी बच्ची 4 साल तक इतने जुल्मों निशानत तक वो गुजरी है, बच्चों के हाथों उसने बर्दाश्त किया है। हाल पुलिस तो चलो ले गई है, वो अपना काम कर रही है, उनका बहुत हमारे साथ तावन है। सब्ज़ाज़ार की जो पुलिस है वो SHO तक हमारे साथ बड़े तावन में है। और हमारे अभी भी ये गुजारिश है कि ये जो बाकी 2 रहते हैं इनको भी पकड़ा जाए, सायरा और उसका जो राशिद नाम है ससुर रिमशा का, इन दोनों को। लेकिन हमारे पास तो हमारी बच्ची चली गई है ना, वो तो वापस नहीं आनी, चाहे आप ये जो मर्जी करें, हमारी बच्ची तो नहीं आ सकती। ये हमें वापस भेज देते, बच्ची को तलाक दे देते, लेकिन इस तरीके से ना भेजते जिस तरीके से उन्होंने भेजे। आपकी फैमिली की भी तो गलती है, क्यों सुलह पे मानते रहे जब हम बेटी रिमशा के मजबूर थे। रिमशा इमरान भी यकीन करके गई है, वो उस रिमशा की एक डिमांड होती थी कि भाई अगर उसको चाची की बेटी समझाती थी, या बाप समझाता था, या माँ समझाती थी, वो एक ही बात पे अटल होती थी कि आप लोग मुझे क्यों नहीं बसने देते, मैं अपने घर में खुश हूँ। यहाँ तक कि जब वो बुलाती थी, हम घर उसके जाते थे देखने भी, तो रिमशा अपने ससुराल के सामने इस तरह हमारे साथ पेश आती थी जैसे कि हम एक गाय हैं उसके लिए। अच्छा, अपने आप को बहुत खुश हाँ जी, साबित करती थी कि मैं खुश साबित भी हूँ। करती थी, और वो पास बैठना ना, पानी ना देना, यानी कि वो कमरे में होती ही नहीं थी। उसकी सास हमसे पूछती थी क्या हाल है बेटा, कैसी हो? रिमशा हमारे साथ ऐसे आके नहीं बैठी जैसे कि हर एक माँ बाप अपनी बेटी के घर जाते हैं। इन 4 सालों में एक दिन भी ये साबित करें कभी भी नहीं आई।
क्योंकि मैं खुद भी रिमशा के घर गई हूँ। मैं रिमशा को जब यहाँ पे रुखसती कर रहे थे पहले दिन भी इसके साथ गई थी, और जब ये इमरान बेटी रिमशा को शादी करके लेके भी गया था, पहले दिन ही मुझे इनका माहौल में कुछ शक था, क्योंकि उनके घर में कुछ क्या लगा था सजावटें आपको? नहीं थी, मसेरियाँ वगैरह, यानी कि खुशी नहीं थे, खुश कुछ नहीं? भी नहीं था। मैंने उसकी नंद सायरा से पूछा भी पहले दिन ही, मैंने कहा ये हम आपके में रिवाज ऐसा है, कुछ मसेरी वगैरह नहीं लगाई आपने, रौनकें नहीं की, आखिर बच्चे भी आके ला रहे हो आप लोग। तो उनके ये बकौल थे कि भाई वो आज काम वाली नहीं आई, सफाई नहीं की, तो हमारे में ना मसेरी नहीं लगाते, आजकल का ये रिवाज नहीं है। तो मैं हम खामोश हो गए। तो शादी के जब उसकी खुशियाँ उस तरह से नहीं थी तो ये भी गिला रिमशा ने किया होगा आपसे? बस रिमशा खामोश थी। वो 6 माह के बाद अल्लाह ने उसको फौरी उम्मीद पे लगा लिया। अगर वो समझदार होती, काश वो हमारी बात मानती, ऐसी नौबत ही ना आती। लेकिन रिमशा का ये कहना था, नहीं भाई आप मेरा घर मुझे आबाद रहने दो, अल्लाह मेरी गोद आबाद करेगा, बेटा बेटी होगी, मैं इमरान ठीक हो जाएगा। उसको अल्लाह ने 2 बच्चे दे दिए, पर इमरान वैसा का वैसे ही रहे। जी, इसमें रिमशा का भी कसूर है कि रिमशा का उसने सिर्फ ये कसूर है कि वो हमारी अपना बात घर मानती। बसाना चाहा। बस वो यही चाहती थी कि मेरे बच्चे हैं, मैंने रहना है, मेरे बच्चे हैं, मैंने रहना है। एक सांस अपनी बहू को रोटी गिन के देती है। रोटी पकाते वक्त, भाई तुम्हारी ये रोटी है, इतने एक रोटी पकाना अपने लिए। ये रिमशा के खुद बकौल थे कि मुझे ऐसे रोटी मिलती है। खाना खाना एक भी वक्त- उनकी मर्जी से था, खाना भी उनकी मर्जी से था। यहाँ तक कि जब वो अपनी माँ के घर आती थी, कपड़े जो पहनने थे वो उसकी नंद सायरा डिसाइड करती थी कि कौन से पहन के जाने हैं। अच्छा, हाँ जी, ये हमें इस चीज़ का इल्म है, हमें वो बताती थी, लेकिन वो बस उसकी बेबसी थी, उसने हमारी बात मानी नहीं। उनकी रिकॉर्डिंग के दौरान एक साहब यहाँ पे आए, ये बुज़ुर्ग आए, और इनके हाथ में ये वो तख्ती थी जो लहद में उतारने के बाद, कब्र में उतारने के बाद किसी भी शख्स की निशानी के तौर पे वहाँ पे लगाई जाती है। रिमशा वज़ीर लिखा हुआ है, सब कुछ वैसे ही है जो हर कब्र पे लगे। इसको तावीज़ भी कहा जाता है, इसको तख्ती भी कहा जाता है, वो लगाता है। लेकिन इसमें एक शेर लिखा हुआ है जो ये कहता है कि ना खंजर से पूछो ना तलवार से पूछो, मैं कैसे कत्ल हुई ससुराल से पूछो। शायद पहले कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि ऐसा कोई शेर लिखा गया हो और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई हो। कोशिश करते हैं। ये बाप जो इस तख्ती को देख के बड़ा आबदीदा हुआ, क्यों लिखवाया आपने ये वाला शेर? इसलिए लिखवाया है कि वो ससुरालियों ने कत्ल किया। किसी की कब्र पे मैंने पढ़ा था गांव में। अच्छा जी। क्या पढ़ा था? यही शेर जो पढ़ा था मैंने। अच्छा, यही लिखा हुआ था। हाँ जी। तो इससे आपको लगता है कि जो लोग वहाँ पे गुजरेंगे, आएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, शायद कोई इससे इबरत हासिल कर ले, शायद कोई अपनी बच्चियों को देते वक्त पूरी तसल्ली करके दे, शायद ससुरालियों को शर्म आ जाए। ठीक है, ये शेर है और ये वो तख्ती है जो रिमशा की कब्र पे लगाई जाएगी। क्या बाप ने कहा, हमने एक दफ़ा ये भी उनकी ज़ुबानी आपको सुनवाया। ऐसा कुछ कहना चाहती हैं जो बहुत सारी बेटियां जो ससुराल में जाती जाहिर है, मैं क्यों नहीं कहना चाहती। मैं तो पूरी हर आवाम से मेरी यही अपील है कि भाई अपनी बच्चियों को देख के दें। हमारी जैसी माँ जैसे आज रो रही है, ये आपने हालात देखे मेरी चाची के, कल के वास्ते ऐसी कोई और माँ किसी की ना रोए। कभी हमेशा बेटी को कुछ भी नहीं होता, किसी की बेटी को कुछ नहीं होता। बहू को कभी जलाया जाता है, बहू को मारा जाता है, जहर दी जाती है। क्यों? अक्सर बहू के साथ ही सब कुछ होता है। अगर आज इसको इंसाफ नहीं मिलेगा, 10 दिन के बाद किसी और बच्ची के साथ हो जाएगा। इसलिए हमें ये भी नहीं कि 10-20 दिन गुजरे, महीना डेढ़ गुजरेगी, केस यहाँ पे बंद हो जाए, भाई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, हम चाहते हैं कि ये आवाज़ आगे फैले, इसको फैलाया जाए, हर माँ तक ये बात जाए, हर बेटी तक ये घर, उसका घर आबाद रहे, क्योंकि हमें इस बच्ची से नसीहत आ गई है। रिमशा जो मकतूला थी, जिसकी सारी कहानी हमने आपको सुनवाई कि कैसे शादी हुई, किस तरह से शोहर उस पर ये जुल्म करता था कि बैरून मुल्क चला गया, फिर नंदे और जेठ और सास और ससुर जो साबिक ऑफिसर भी हैं, इनके मुताबिक क्या कुछ होता रहा उसका, ये रिमशा के लवाकिन ने हमें बड़ी तफसील के साथ बताया। बाप का क्या दुख है और माँ का दुख हमने अभी आपको सुनवाया और दिखाया भी कि किस तरह से उसे तकलीफ़ है कि उसकी बच्ची जिसकी उम्र अभी 24-25 साल थी,
वो इस दुनिया से चली गई और 2 छोटे छोटे बच्चे उसके इस दुनिया में रह गए। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको ये वो बात बताई, इससे पहले भी और शायद इसके बाद भी इस तरह का जुल्म होता रहे, लेकिन ये भी चाहते हैं, ये हमारी बहन भी ये कहती है कि खुदारा बेटी क्यों नहीं जलती, बेटी क्यों नहीं मरती, बहू ही ससुराल में क्यों कत्ल हो जाती है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।